Hi there, Shrutesh is here, and I hope you are all doing well. Welcome back to this digital marketing course, and we will going to learn the new topic here that is freelancing. So this one is our new module that is the freelancing. So here we will going to learn about the understanding of freelancing. Means we will going to understand what is freelancing is. Freelancing websites that able to gives us a freelancing work, how to sign up with freelancing sites and getting projects through the freelancing websites. So first of all, we will see what is freelancing. So we will try to understand what is freelancing. A freelancer is someone who does not work for one company full time, but is hired by different companies for a certain jobs. So this is not related to the company and employment. You are a freelancer, so you can able to work with multiple companies. Okay, as you have your certain particular time, and within that certain particular time, you can able to work over these freelancing projects. Okay, next one is the freelancer is someone who performs a task usually for multiple employers over the course of a year. So in this case, the freelancer is going to work for the multiple employers, means multiple companies. Okay. Then freelancer may work part-time or full-time because they are not considered employees. So if you are performing any one task as a freelancer for any particular company, so you can be work as a freelancer or the part-time or maybe full-time because you are not the employer of that company, you as an individual person. Freelancing is one of the easiest, fastest, lowest cost ways to start working for yourself. So this is what is freelancing. Now we will going to see some of the projected stats which can be estimated in 2020. So the project growth for US freelance workforce means 43% of Americans will be freelancing by 2020. In this year, the 43% of the US workers are going to work for a freelancer for other companies. Okay. And then after 50.9% of Americans will be freelancing by 2027. Means near about 51% of the Americans skilled labor are going to work as a freelancer in 2027. Means it is a projected stats, it is growing day by day, and look here, what's a huge opportunity for you to work as a freelancer. Then we will going to see a new stat that is most job go to the freelancers from India and US. So this is a very good statistic in our point of view because most of the freelancers are from two countries. One is from India and second is from United States, which account to 45% of the job examined. Means so we both countries have grabbed the 45% of share of the total industry, as we have a very good opportunity to work as a freelancer. Why these two countries are holding this amount of share of freelancing? Because the language barrier may explain the low volume of countries like China, Russia, and Germany. Means if you are look at the other countries, they have their own languages, they have their own softwares, they have their own search engines in their languages. Because the India have the second most important language is English, and that's why we can able to work fluently in English, right? So look at here the statistic. Look at here, India. India is having the freelancing share about the 38%. Then after followed by USA 16%. Then after followed by 8% is by Philippines, and then after 8% by Canada. Then US. Then Australia. Then Argentina. Russia is having the least. Means only 4%. China is also having the least. Easy. It is 4%. So there is a tremendous and huge opportunity those who wants to
work as a freelancers in Indian markets. We can grab the English oriented projects from the all over the world. And if you are a skilled labor in India, you definitely get the freelancing projects, please, because we are having the cheapest cost to offer. So that's why there is an importance of freelancing in Indian market. So we will going through the step to build your priority as a freelancer, how you can establish yourself as a freelancer. Offer your service to friend and family. First of all, what you want to do, if you have anyone skill, so offer your skills to anyone, that is friend or family. Use your relevant school project in your portfolio when you are first stand out. Means if you are doing the projects in school or colleges or your curriculum, so offer them as your skills and choose a project according to that. Contact a local non-profit and see if they need any help. So if you need a freelancing project, so you can contact to locals, NGOs, like NGOs or companies. So you can get some of the contracts from them. Then find out if there are any special certification or titles held by professionals in your field. So you want to study your competitors and what they are saying in the market. uh, you want to look at this. Means he is saying that I am the certified specialist or something else, what he is telling to others to get this type of jobs. So you want to go through this process first, okay. And the last but not the least point is practice, practice, and practice. Never stop honing your craft. So you need to practice all these stuffs daily. Okay. तो चलिए अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होता है। तो देखिए, मैं आया हूँ गूगल पर और यहाँ पे मैंने डाला है फाइवर। ये फाइवर जो है, ये काफ़ी बड़ी फ्रीलांसिंग साइट है और जहाँ पे मैंने भी खुद वर्क किया है। तो ये फाइवर क्या है, इसे हम देखते हैं, ठीक है। फ्रीलांसर सर्विस मार्केट प्लेस फॉर बिजनेस, ओके। तो देखिए, अब देखते हैं कि मुझे कंटेंट राइटर ढूंढना है यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे गए हम, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट आया है, रिजल्ट फॉर कंटेंट राइटर। ये आया, ये इसका रेट देखिए क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1584 रुपीज़ से ये 792 रुपये से। ये बहुत सारे कंटेंट राइटर है यहाँ पे अवेलेबल। हम कोई ये ले लेते हैं। तो हम आए हैं इसके प्रोफाइल में और ये क्या ऑफर कर रहा है वो देखता है। आई विल बी योर एसईओ ब्लॉग कंटेंट राइटर। एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग, ये हमें लिख के देगा, ठीक है। तो किस तरह से एसईओ फ्रेंडली कंटेंट रहेगा, कंटेंट बेस्ड ऑन एक्यूरेट एंड कंप्लीट रिसर्च, 100% यूनिक रहेगा। तो देखिए, इसने जो काम किए इससे पहले वो भी स्क्रीनशॉट इसने डाला है। 5 वे टू ग्रो योर रियल एस्टेट बिजनेस, ये एक आर्टिकल लिखा है इसने। बेस्ट वे टू कन्वर्ट ओल्ड लाइफस्टाइल टू मॉडर्न लाइफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, ये यहाँ पे लिखा है इसने। देखो यहाँ पे लिखा है इसने हाउ टू माइक्रो ब्लडिंग एट होम। ये इतने सारे आर्टिकल्स इसने लिखे हैं, ठीक है। डन 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 डन, राइट। देन यहाँ पे देखिए उसने लिखा है टैग्स वगैरह वो किस तरह से लगेगा। एक्चुअली इट इज द डैशबोर्ड ऑफ वर्डप्रेस, ओके। देन आफ्टर यहाँ पे कौन सी वेबसाइट पर उसने कंटेंट लिखे, आर्टिकल्स लिखे, ब्लॉग्स लिखे, ये यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए ये जो है ये प्लेगरिज्म चेक कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे देख बोल रहा है लुक्स लाइक यूर टेक्स्ट इज 100% ओरिजिनल। तो ये क्या कर रहा है, साथ में ये चेक कर रहा है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो ग्रामरली यूज कर रहा है। ये सिंबल देखिए, दिस वन इज द सिंबल एंड ये सिंबल देखिए। मैं भी खुद क्रोम एक्सटेंशन यूज करता हूँ ग्रामरली का, कोई भी लिखने के लिए, ठीक है। कुछ भी कंटेंट लिखने से पहले ये देखिए यहाँ पे सेम लोगो है और यहाँ पे सेम लोगो है, यानी ये ग्रामरली यूज कर रहा है उसके कंटेंट चेक करने के लिए। और प्लेगरिज्म, ये इससे पहले हमने देख लिया था प्लेगरिज्म कैसे चेक करते हैं। स्मॉल एसईओ टूल्स, प्लेगरिज्म
स्कैन रिपोर्ट, देखिए 100% दिखा रहा है इसमें जो कंटेंट लिखे है, तो ये साबित कर रहा है कि मुझे 100% प्लेगरिज्म की कंटेंट लिखना आता है। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे उसने ग्रामरली में चेक किया है कि किस तरह से कंटेंट उसका जो है ग्रामर ऑप्टिमाइज्ड है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ऑफर कर रहा है। तो देखिए ये ब्लॉग कैसे लिखते हैं, प्लेगरिज्म कैसे चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इससे पहले हम सीख चुके हैं। यानी यहाँ पे हो रही फिजिबिलिटी स्टडी, हमने जो इस कोर्स में सीखा है वो कितना फिजिबल है मार्केट के हिसाब से यहाँ पे प्रूव हो रहा है। तो अभी इसकी ऑफरिंग देख लेते हैं हम। तो ये एक बेसिक पैकेज दे रहा है, सिल्वर। आई विल राइट द 700 वर्ड आर्टिकल्स विद द कंप्लीट रिसर्च एंड ऑन पेज एसईओ विद 0% प्लेगरिज्म। स्टैंडर्ड भी पैकेज है उसके पास 1188 में, ठीक है। 4 days टू डिलीवरी, 1500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के देगा वो उसमें। प्रीमियम भी सर्विस है, 3000 वर्ड्स का आर्टिकल वो लिख के दिया 1979 रुपीज में, ठीक है। तो ये पैकेजेस वो ऑफर कर रहा है। यहाँ पे दिया गया है अबाउट गिग, इसमें जो भी हम ऑफरिंग देते हैं ना हमारी सर्विस की, उसको कहा जाता है गिग्स, ठीक है। वेलकम टू माय गिग, आई विल बी योर एसईओ कंटेंट राइटर, एसईओ फ्रेंडली, engage an audience, keep with them, you include images and videos, get your leads and conversation accurate based on complete research। तो इसने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। और देखिए ये कहाँ से है, ये बंदा है पाकिस्तान का और उसने 2017 से काम शुरू किया है। रिस्पॉन्स वो 1 आवर में दे देता है और इसको इसको है समझ लीजिए 191 रिव्यूज़। तो अगर 191 के हिसाब से भी उसकी बेसिक सर्विस पकड़ी जाए, देखिए रिव्यू तो बहुत कम लोग लिखते हैं, इसने प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लिए होंगे मगर रिव्यू आप यूजुअली देखते होंगे कम ही लोग लिखते हैं। तो 191 लोगों ने रिव्यू लिखे हैं, इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए होंगे वैसे, उसमें से कुछ एक लोगों ने रिव्यू दिए है उसे। तो अगर ये आंकड़ा भी पकड़ लिया जाए और उसका बेसिक पैकेज इनसे मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये 1.5 लाख रुपए के करीबन जाएगा। तो एक सिंपल से गिग्स के थ्रू, एक सिंपल से फ्रीलांसिंग वर्क के थ्रू उसने 1.5 लाख के आसपास अपना एक जो है अमाउंट कमाया है। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे हम तो कॉन्टैक्ट सेलर से आप चैट कर पाएंगे और चैट करके यहाँ से यहाँ पे इसके साथ में बात कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें जो है ये फीवर पर इस तरह से होती है। तो अब हम देख लेते हैं हमें अगर ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है, हमें अगर सेलर बनना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो बिकम अ सेलर में जाएंगे और देखिए यहाँ पे बिकम अ सेलर में आ गए हम। यहाँ पे अभी हम क्लिक करेंगे बिकम अ सेलर और आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसे फेसबुक के साथ में, गूगल के साथ में या आपके ईमेल आईडी के साथ में। और मैं कंटिन्यू कर देता हूँ उसको गूगल के साथ में। तो देखिए आप जब भी साइन अप करेंगे तो आप डैशबोर्ड में चले जाएंगे और आपको प्रोफाइल वगैरह सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मेरी ऑलरेडी प्रोफाइल बनी हुई है क्योंकि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी काम किया है। तो जाएंगे यहाँ पे देखेंगे प्रोफाइल में। तो देखिए ये जो है ये मेरी प्रोफाइल है, आई एम फ्रॉम इंडिया। दिसंबर 2018 में मैंने इसे ज्वाइन किया था। एवरेज रिस्पांस रेट जो है वो 3 घंटे का देता हूँ मैं। रिसेंटली डिलीवर्ड अबाउट 1 साल पहले मैंने इसमें एक्टिवली काम किया था और एक $5 की गिग जो है ये मैंने बनाई थी। वो कौन सी थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सेलर डैशबोर्ड में आए हम, डैशबोर्ड में दिखा रहा है वो रिस्पांस रेट क्या है, डिलीवरी ऑन टाइम है कि नहीं है, ऑर्डर कंप्लीशन क्या है, ठीक है। तो ये सारे लोग जो है इन्होंने मुझसे चैट किया इनबॉक्स में, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ठीक है। तो देखिए किस तरह से कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चैटिंग दिखा देता हूँ, बोलिस हाय व्हाट इज मैनेजमेंट ड्यूरेशन डेज, कितने दिनों में आप करेंगे। तो ये गीक पर उसने हाउ मेनी पोस्ट आर इंक्लूडेड। तो ये जो है Pinterest मार्केटिंग से रिलेटेड एक गिग मैंने बनाई थी। हाय थैंक्स फॉर योर कॉन्टैक्ट मी और दिस इज़ माय Pinterest मार्केटिंग प्लान। तो ये प्लान मैंने उसको पूरा प्रोवाइड किया था। उसमें मैनेजमेंट ड्यूरेशन मैंने दिखाया था, उसको बताया था 5 to 20 days का रहेगा, ठीक है। और फिर उसको फिर से ऑफरिंग किया, आई विल डू डेली फॉर यू, दिस सर्विस इंक्लूड्स द प्रीमियम पैकेज। प्रीमियम पैकेज में मैं उसे क्या ऑफर कर, डेली बोर्ड्स क्रिएशन ऑफ योर प्रोडक्ट्स,
तो देखिए फिर मैंने लिखा है, सर आई हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट बट यू हैव नॉट मेंशन्ड इट ऑन फेवर, दैट्स व्हाई आई डोंट गेट पेमेंट येट फ्रॉम फीवर, प्लीज मार्क इट कंप्लीट। तो वो बोल रहा है आई एम सॉरी, आई विल मार्क इट टुनाइट। ठीक है, तो ये जो है इसकी प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर ने फीवर की साइट को पहले ही पैसे दे दिए। अब उस मैंने इसके प्रोजेक्ट पर वर्क किया है और उसने बोला है फिर कि डिलीवर देने के बाद कि सर मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, आप इसको मार्क कीजिए इस वेबसाइट पर जाके कि मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है। तो इनके प्लेटफॉर्म से पैसे जो है वो मेरे अकाउंट में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे चार्ट्स है कस्टमर के साथ में मैंने, जब मैं इस प्लेटफॉर्म पर काम करता था तो मैंने किए हैं। तो ये जो गिग है वो ऑफर किए थे हमने, प्रोवाइड यू द बेस्ट इंटरेस्ट मार्केटिंग सर्विस प्लान। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाएंगे हम, रिव्यू करेंगे हम। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन सी गिग हमने यहाँ पे प्रोवाइड, आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट इंटरेस्ट मार्केटिंग सर्विस एंड प्लान। तो यहाँ पे हमने 3 इमेजेस ऐड किया है। और देखिए ट्रायल पैकेज 396 रुपीज़ का, 10 डेज डिलीवरी। ठीक है, स्टैंडर्ड पैकेज 1188 का, और प्रीमियम पैकेज है 1979 का, मैंने जो ऑफर किया था। ठीक है, 20 डेज ऑफ डिलीवरी, 20 डेज में। तो अबाउट द गिग इसमें क्या किया था हमने, क्रिएट रिच क्लीन सेटअप, क्रिएटर रिलेटेड बोर्ड, ये सारी जो चीज़ें हैं हमने यहाँ पे दिखाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा काम नहीं किया है, फिर भी यहाँ पे जो है वो मैंने 3166 का अमाउंट अभी भी पेंडिंग है, जो मैंने अभी निकाला नहीं है। तो मुझे जो प्रीवियस ऑर्डर आए थे यहाँ पे दिखा रहा है नेट इनकम $40 का, अभी भी पेंडिंग है ये, अभी भी मैंने इसे यहाँ से रिडीम नहीं किया। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे न्यू गिग क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, क्रिएट अ न्यू गिग। अब यहाँ पे आई विल डू कंटेंट राइटिंग यू, है ना। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी बन रहा है वो, तो ये किसमें डिजिटल मार्केटिंग के कंटेंट लिख सकता हूँ मैं, कौन से इसमें, सोशल मीडिया और कंटेंट मार्केटिंग में लिख सकता हूँ। ठीक है, और सिलेक्ट द सर्विस टाइप कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, और यहाँ पे मेटा कुछ भी दे सकते हैं आप, किसके लिए, पिंटरेस्ट, ट्विटर, मीडियम के लिए लिखता हूँ। ठीक है, टारगेटेड ऑडियंस कौन सा है, टारगेटेड ऑडियंस जो है हमारे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी यूजर्स वाले हैं। लैंग्वेज किस लैंग्वेज में लिखूंगा मैं, इंग्लिश में लिख सकता हूँ, इंग्लिश। और टैक्स भी देना पड़ता है, जब लोग सर्च करेंगे तो कौन से टैक्स में आएंगे, कंटेंट राइटर, कंटेंट राइटर्स, कंटेंट राइटिंग, और ऐसे जो है वो कम से कम मैक्सिमम 5 जो है टैक्स आप कर सकते हैं। फिर इसको कर दिया हमने सेव एंड कंटिन्यू, सेव हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है अब यहाँ पे बेसिक प्लान में, स्टैंडर्ड प्लान में, प्रीमियम प्लान में क्या ऑफर कर सकते हैं आप, ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। डिलीवरी का टाइम सिलेक्ट, कितने इसकी गीग है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये गीग एक्टिवेट हो जाएगी, और फीवर पर जो जो कंटेंट राइटर्स कंटेंट मार्केटिंग नाम से सर्च करेंगे उनको दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एफएक्यूज, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी, पब्लिश, ये सारी चीज़ें आपको आगे आगे चल के करना पड़ेगा। तो बेस्ट वे ये है यहाँ पे किस तरह से जो है डाटा फिल किया जा सके। तो आप आपका जो कॉम्पिटिटर है ना उसे देखिए, और उसने बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम प्लान में क्या क्या ऑफरिंग्स की है वो देखिए, और सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। उस तरह की एक गिग बनाइए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, और उसे पब्लिश कर लीजिए। फिर ऑर्डर्स आएंगे, कोई कांटेक्ट करना चाहेगा तो वो चार्ट करेगा हमसे, हम चार्टिंग के थ्रू उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर वो इस जो प्लेटफॉर्म है फीवर वहाँ पे पेमेंट करेगा,
और पेमेंट होने के बाद में आपको इन्फॉर्मेशन आएगी कि इन्होंने आपकी ये गिग खरीदी है, और वहाँ से आप उसके जो प्लेटफॉर्म्स है, उसकी जो चीज़ें उसको जो चाहिए उस पर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। मिला जुला के इसी तरह से सब साइट्स पर काम होता है। तो अब हम देखेंगे टॉप फ्रीलांसिंग साइट्स कौन सी अवेलेबल है, अगर हमको स्टार्ट करना है फ्रीलांसिंग काम करना। तो यहाँ पे सर्च किया मैंने फ्रीलांसिंग वेबसाइट, तो देखिए एक वेबसाइट, तो देखिए होस्टिंजर का एक ब्लॉग आया है, 18 बेस्ट फ्रीलांसर वेबसाइट्स, ठीक है, इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे होस्टिंजर का आर्टिकल आया 18 बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट, तो उसमें है सबसे पहले फीवर है। तो हमने फीवर ऑलरेडी अब भी समझा है, ठीक है। अपवर्क है सेकंड नंबर पर, टॉपटल है, सिंपली हायर्ड है, पीपल पर हो है, ये प्लेटफॉर्म पर मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, ठीक है। तो फ्रीलांसर है, इस पर भी काम किया है मैंने। तो ये सारे जो है प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है आपके फ्रीलांसिंग वर्क करने के लिए। और किस तरह से इसको एक्सेस करना है, फीवर, अपवर्क, तो ये आर्टिकल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो फ्रीलांसिंग एक कंसेप्ट है और ये आगे चल के बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि सारे लोग जो है, बड़ी बड़ी कंपनी जो है फ्रीलांसर जो है हायर कर रही है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आप भी इसमें काम कर सकते हैं, मगर इस तरह से नहीं है कि आज आपने देखा और कल काम कर शुरू कर दिया। आपको आपके स्किल से रिलेटेड सर्विसेज ढूंढनी पड़ेगी। पहले तो आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। कोई बंदा जो है जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग में काम कर चुका है, उसके तरफ से आपको अप्रोच मिलेगा, या फिर मुझे बताइए कि आपने कौन से काम किए, किस तरह के आर्टिकल लिखे हैं। तो हम इसे वैलिडेट करेंगे कि एक्चुअल में आप फीवर पर या फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर आपकी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं या नहीं। और वहाँ से आपकी जो है फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट होगी, और स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ेगी। तो इनिशियल में आप जब ज़ीरो रहते हैं, आपके पास कोई रिव्यू नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है, तो किस तरह से ऑफरिंग करना पड़ता है। तो आप कभी-कभी फ्री सर्विस ऑफ़र कर सकते हैं, कभी-कभी आप सर्विस ऑफ़र कर सकते हैं एकदम चीप कॉस्ट में, आपके कॉम्पिटिटर से लेस कॉस्ट में। तो इस तरह से आप जो है ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट से जो है वर्क ले सकते हैं और उसे कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं, और उसके थ्रू जो है आपका रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, फ्रीलांसिंग में कहीं भी कर सकते हैं। तो यही था हमारा फ्रीलांसिंग से रिलेटेड मॉड्यूल, जहाँ पे हमने समझा है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट कौन सी है, साइन अप किस तरह से करना है, और प्रोजेक्ट किस तरह से ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फ्रीलांसिंग में होती है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, मगर आपने जो वर्क किया है, आपके पास जो स्किल है, वो किसी एक्सपीरियंस पर्सन से वैलिडेट कर लीजिए पहले। देख लीजिए कि आप सही में किसी फॉरेन कस्टमर को ये ऑफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ एक दिनों के लिए किसी एक्सपीरियंस होल्डर के साथ में काम कीजिए इन चीज़ों पर, और उसके बाद में आपका फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कीजिए। सो यही था हमारा फ्रीलांसिंग से रिलेटेड मॉड्यूल। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।